गाइस 2020 इज अबाउट टू एंड. हम बस खड़े हैं, 2-3 दिन का बात और है कि 2020 खत्म हो जाएगा. ये वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट हैज हैपेंड इन 2020 और 2020 से पहले क्या हुआ था, और मैं आपको पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस दूंगा एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2021 इन सिंपल वर्ड्स. एंड दिस सेशन विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल सेशन. और हाँ, ये सेशन लंबा होगा. If you do not have the time, stop this video right now and watch this video when you are free, because I don't want you to leave in the middle. आप बीच में छोड़ोगे तो उसका पूरा point purpose सब खत्म हो जाएगा. You have to see this video till the very end. मैं आपको पूरी स्टोरी समझाने वाला हूँ, ठीक है? So if you don't have the time right now, इस वीडियो को see later डाल देना YouTube पे, right? And watch this video when you have time, right? So let's get started on telling you on what is the economic analysis of 2020 before 2020 and what to expect in 2021. Shall we begin? Let's go. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And in stock markets, we provide a full course from basic to advanced level in trading and investing. And if you're interested, the link of that course is in the description below, so you can go for it. अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस की. नाउ लेट मी शो यू द स्क्रीन्स. ओके, इकोनॉमिक एनालिसिस, वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा हम क्या क्या करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या प्रोटोकॉल्स मेंटेन करेंगे, एंड हेंस वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, सबसे पहला इंडेक्स, व्हाट ऑल विल वी कवर. देखो, सबसे पहला व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देन वी विल कवर हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड, then before 2020 era, then happenings in 2020 में क्या क्या हुआ था, then the gap between the stock market index and the economy. Are you seeing right now there's a massive gap? वो gap क्यों होता है, right? Then we're going to talk about the bank interest rates and we're going to talk about inflation, and then we're going to talk about what to expect in 2021. तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. And again, I'll keep on reminding you, if you do not have time to watch this video right now, stop this video and watch this video later जब आपके पास टाइम होगा. Otherwise you will not understand anything, right? This is going to be a very powerful session. Okay, so first, what is economics? Now read this statement. Take few minutes and read this statement, and preferably guys, it will be great if you can put headphones on so that I can have your full concentration. Cool? Okay, so read this statement. What is economics? Economics is a social science that studies how people interact with value, in particular production, distribution and consumption of goods and services. Economics focuses on the behavior interaction of economic agents and how economies work. This statement I had just simply copied from the internet. You Google what is economics, is the first statement जो आपको दिखेगी. क्या कोई सीखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. Remember this when I tell you this. Economics is easy. The easiest subject in the world is economics. सबसे इजी है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, डिमांड सप्लाई. अगर आप डिमांड सप्लाई को अच्छे समझ गए ना दोस्त, यू आर अ चैंपियन इन इकोनॉमिक्स, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स विच वी हैव टू मग अप एंड पास आर एग्जाम्स इन स्कूल्स और कॉलेज में. उस इकोनॉमिक्स की बात नहीं करूँ कि वो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे भी बहुत कम यूज है. मैं आपको इकोनॉमिक्स को बता रहा हूँ जो एक्चुअली यू विल लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द इकोनॉमी एंड टू इंटरप्रेट द स्टॉक मार्केट्स, राइट? सो वी आर गोइंग टू पुट इट वेरी सिंपल वर्ड्स. हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड? सबसे पहला, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. ठीक है, अगर आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं पता, यू नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, डोंट वरी माय फ्रेंड, लिसन टू दिस वीडियो. मैं आपको हर चीज सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा, इन सिंपल लैंग्वेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. देन टाइमलाइन. आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. इकोनॉमिक्स क्या है? पूरी एक स्टोरी अनफोल्ड हुई है. आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी दैट द इंडियन इकोनॉमी कहां से होके आ रही है एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्यूचर. सो आराम से रहना, चिल मारो, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर फन एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट. आप खुद इस वीडियो के बाद कमेंट करोगे नीचे दैट दिस वीडियो हर्ष वाज ऑसम. देन आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड द फोर्थ पॉइंट इज आई डोंट टेक एनी पॉलिटिकल स्टैंड्स. ठीक है, मेरा कोई पॉलिटिकल स्टैंस नहीं है. आई एम नॉट प्रो विद द करंट गवर्नमेंट, आई एम नॉट प्रो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट. आई ओनली वांट टू टॉक इकोनॉमिक्स. ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है ना हमारे देश में दैट एनी डिस्कशन इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी, बॉइल्स डाउन टू बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. बस
Every discussion we have on economics boils down to politics. चाहे वो आप कोई न्यूज चैनल देख लो और इंडियंस को देख लो, whenever two Indians talk, ultimately it boils down to politics. But आज I'm not taking side of any political party, so don't get me wrong that I'm taking side of this political party that I really could not care less. मेरा आज के लिए सिर्फ मेन एजेंडा है इकोनॉमिक्स, एंड टुडे माय फ्रेंड वी आर गोइंग टू टॉक सिंपल इकोनॉमिक्स. सिर्फ इकोनॉमिक्स में बात करना. अगर पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो रहे हो तो अगेन शट दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Cool. And end goal क्या है? End goal after the session I want you to develop and analyze, develop the ability to analyze and study economic conditions yourself. End goal ये है. मैं आपको simple तरीके से बताऊंगा so that even you can start interpreting the economy. Okay. So before the 2020 era, now let me just shut the presentation. Okay. अब remember 2019. हो सकता है a lot of you might not be active in 2019. हो सकता है a lot of you were active in 2019. याद है 2019 में क्या हुआ था? इट वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ अ ईयर. इट वॉज केओटिक. एवरी वन वॉज ब्लेमिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. डू यू रिमेंबर द मनमोहन सिंह इंटरव्यू केम आउट? आर एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, ही केम आउट द इंटरव्यू दैट इंडियन इकोनॉमी इज नॉट गोइंग एनीवेयर. इफ यू डोंट बिलीव मी, इफ यू डोंट रिमेंबर, यूट्यूब पे जाओ, गूगल करना आफ्टर दिस वीडियो. You remember when the ex-RBI governor Raghuram Rajan ji, he came out with an interview saying that this government does not have anything in control. मुझे याद है उस समय था कि हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही थी और बहुत मीम्स बने थे दैट द मीम्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. वो तो कभी पॉसिबल है ही नहीं. एंड मीम्स बने थे कि हमारे देश में जॉब्स कैसे बढ़ी हैं, जॉब्स बढ़ी हैं चाय वालों की तरीके से, राइट. सो आई फील मीम्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज. ठीक है, तो बहुत मीम्स बने थे, बहुत सिचुएशन हुआ था, रिमेंबर. अब लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन अगेन. Now the year 2019 was very bad. Bad तो गलत हो जाएगा. I think I would say it was a roller coaster of year. It was very confusing. और स्टॉक मार्केट में हर साल ऐसा ही होता है, ठीक है. So sentiment was bad. People were thinking that the economy is finished. The Narendra Modi government is not doing anything well. The ex-Prime Minister Manmohan Singh came out to the interview. The ex-RBI Governor Raghuram Rajan came out to the interview. The most volatile sectors of that time were automobile, banking, NBFC, real estate. And if you remember liquidity crisis IL&FS से शुरू हुआ था, and the DHFL crisis in the DHFL I think was in 2019, right? So I just wanted to picture all those things. And if again अगर आप उस समय थे एक्टिव, आई एम श्योर आपको सब याद आ गया होगा. बट अगर एक्टिव नहीं थे तो ये हुआ था. स्टोरी की तरह इसको सुनो. Now markets at that time touched an all-time high twice. In 2019 markets touched an all-time high twice. जब sentiment क्या था? Sentiment was bad. The economy was not doing well. The economic indicators were not favoring the stock market to do well by any means. Still, markets touched an all-time high twice. If I show you the graph, let me show you the graph. Now, if you can see this is Nifty 50 graph. यहाँ पे आप देखोगे the first peak was on 2nd May 2019, which was around Nifty was around 11,918 points. मैंने ग्राफ में रखा है, I hope आपको दिख रहा हो. The second peak was on 2nd December 2019, where the Nifty had gone up to, I can see 12,157 points. तो आप देखो इतना खराब सेंटिमेंट होने के बाद भी the markets went all-time high 2 times in 2019. So this 2019 was a complete roller coaster of a year. Ab, moving forward, what were the past economic reforms since the Narendra Modi government has come into picture? Again, do not get politics in this. Since the Narendra Modi has come into picture, क्या-क्या चीजें हुई हैं? There was demonetization. Now demonetization, I remember when it came, it was complete shock for everyone. सब shock थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है. And if you analyze demonetization right now, I would say political intention was good, but definitely the negative impact of demonetization was much more than the positive impact, right? Then GST happened. Now you remember, if you're a businessman और या फिर अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस चला रहे हैं या फिर आपका कोलीग है जो बिजनेस चला रहा है, you know GST was a headache. ये नहीं पता GST में norm क्या है. The chartered accountants were not clear because the income tax of India was not clear on what GST. The rules and regulations were very haphazard. अब तो चलो तभी भी things have really refined down. Then RERA had come, Real Estate Regulatory Authority, right? Then there were policies like IBC, NCLT. Then there was recapitalization of private sector banks. Now let me shut down the PPT. Yeah. अब आप खुद देखोगे, since the Narendra Modi government has come, we have gone through massive changes. These changes are good, these changes are bad, that is debatable. But the changes the economy has been seeing are massive.
Now there are two types of changes. There are two types of changes. Structural changes, cyclical changes. ध्यान से सुनना. Structural changes, cyclical changes. Structural change क्या होता है? The change which is permanent in nature. Cyclical change वो होता है the change which is temporary in nature. If suppose I paint my house, मैंने अपने घर को पूरा पेंट कर दिया. It's a cyclical change. Why? Because अगले साल में दोबारा पेंट कराऊंगा. Then 2 years after that I'll get it painted again. Cyclical. Now if I make another floor on top of my house, मैं एक और फ्लोर बना दिया, तो क्या वो cyclical change है? वो structural है, वो permanent है. Right? तो आप देख रहे हो cyclical changes and structural changes. Now stock markets में भी there are cyclical sectors, there are structural sectors. What are cyclical sectors? Cyclical sectors I would say like agriculture. Right? Rainfall के साथ it's a cyclical sector. I would say real estate is a cyclical sector. Right? Structural sectors क्या होंगे? I would say pharmaceutical industry, healthcare structural, FMCG structural. क्यों? अब if suppose you start using a toothpaste. अब किसी लोग कि somebody is a villager, he does not use toothpaste or toothbrush. उसने toothpaste और toothbrush use करना start कर दिया. तो do you think he's ever going to stop using a toothpaste or toothbrush? No. No matter how much massively he earns after that, और उसकी या फिर उसकी earnings are halved after that, he will still use that toothpaste and toothbrush. So FMCG क्या है? Structural. Same with healthcare. As and when you start using good quality healthcare, तो if your income is half, will you ever half your healthcare amount? नहीं. आप healthcare उसी standard का ही लोगे. ठीक है? Suppose to give an example, if suppose I am not financially strong, doctor ने बोला कि Harsh, your kidney needs to be operated. I am not financially strong. तो क्या मैं नहीं कराऊंगा? Of course मैं कराऊंगा. I am going to do any means. I am going to go to any means. I might even take a loan. I might even take an unorganized loan from unorganized sector. I am going to liquidate my assets, but I am going to get my operation done. Right? But कल को if I am on a financially very strong position, will I get 4-5 operations done? नहीं. It's a structural change. ठीक है? तो difference समझ रहे हो? Now let me show you the PPT again. Now you will see there are two types of changes, structural and cyclical. Now demonetization, GST, RERA, IBC, NCLT, then recapitalization of public sector banks. These are structural changes. ये permanent है. So if you see, before 2019 also, our Indian economy, and specifically when the Narendra Modi government has been elected, again, please, इसको politics में मत ले जाना. Right? Don't get this into politics. I'm just talking pure economics. Right? If, अब जब से नरेंद्र मोदी government has come into power, our economy is seeing a lot of structural changes. Now, are structural changes bad? नहीं. Obviously, they're for the good. But definitely, I think the implementation could have been done a little better. Right? This is my opinion. If you see the past governments, I don't remember any structural changes from them, significant structural changes from them. Now, we are seeing so many changes. But again, I'm not getting into politics. Just giving you my personal opinion. Only on economics. Cool. Now moving forward. तो आप structural समझिए क्या क्या changes हुए थे, past reforms क्या हुई थी, and the structural and cyclical. So what the Indian economy was going was through massive structural changes. I think not was, the Indian economy still is going through massive structural changes. अब let me take an example. Let me take large cap versus mid cap. अब हुआ क्या था? In 2019 large caps ने बहुत अंधाधुन they increased. ठीक है? अभी मैं इसको और समझाऊंगा आपको डिटेल में. But let me give you an example that in structural changes से हुआ क्या. Right? Let me first hide the PPT. Okay. अब आप खुद देखोगे is that our Indian economy is based of unorganized businesses. Our Indian economy is largely based just on unorganized businesses. I think nobody can debate on that, right? If you see from the rural areas, if you see the actual India, business unorganized है. Now with this structural change, ना जो structural changes, demonetization, GST, सब changes हो रहे थे, इससे the entire economic wheel is rotating. ठीक है? The entire economic wheel is rotating, and we are moving from unorganized to organized. We are moving from unorganized to organized. ठीक है? Now let me explain by the example. Let me show you the PPT again. Now let's take large cap versus mid cap and small cap. Now आप खुद देखोगे. Let's take an example of ACC Cement. On the other hand, let's take an example of a small company. Now example करते हैं कि small company भी cement produce करती है. ठीक है? Example लेते हैं. अब you will see that ACC Cement has the economies to scale because AC cement इतनी quantity में produce कर रहा है. It has the better quality because I'm assuming machinery is better. Machinery is better, quality भी better है और pricing भी better होगी. क्यों? ACC has the economies to scale. ACC कितनी quantity
मैन्युफैक्चर करा है, तो ऑब्वियसली एसी सीमेंट की जो एसीसी का सीमेंट होगा, इट विल बी हायर इन क्वालिटी एंड इट विल बी लेसर इन प्राइस, राइट? बट इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, क्या क्वालिटी इतनी अच्छी होगी? नहीं। क्या प्राइस एफिशिएंसी वही होगी? नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द इकोनॉमीज टू स्केल। सही है? बट तभी भी लोग खरीदते थे मिड कैप और स्मॉल कैप से। क्यों खरीदते थे? अब खुद सोचो, if a again I'm just giving a hypothetical example, if companies like ACC Cement is there, तो कोई वेंडर एक स्मॉल या मिड कैप सीमेंट कंपनी से सीमेंट क्यों खरीदेगा? जबकि एसीसी में क्वालिटी भी बेटर है, प्राइस भी बेटर है, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा? सोचो। हिंट दूं? हिंट ये है दैट आवर इकोनॉमी इज एन अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। फंडा ये है, व्हेन यू गो टू अ स्मॉल कंपनी यू गेट बिल एडजस्टमेंट्स, आप टैक्स बचा सकते हो। Like I told you, in India, there's a lot of businesses, the majority of the businesses are unorganized. तो do they give tax? नहीं, they operate on cash. वो कैश में काम करते हैं, तो बिल ऑफिशियल नहीं होता है। इसलिए कितने बिजनेसेस तभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप के पास जाते थे, बिकॉज देयर कैन बी मेनी थिंग्स। आई डोंट वांट टू स्टे इट ऑन अ वीडियो, बट आपको पता है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही है, ठीक है? इफ यू गो टू अ स्मॉल वेंडर तो बहुत चीजें पॉसिबल हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट विद अ कंपनी लाइक एसीसी। तो सब के सब कहाँ जाते थे? स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत डिमांड होती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, जो हमारी इकोनॉमी स्टार्टेड मूविंग ऑर्गेनाइज विद जीएसटी, विद डिमोनेटाइजेशन, अब जो टैक्स बेनिफिट था वो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत कम हो गया। तो वेयर डू पीपल बाय फ्रॉम? लार्ज कैप कंपनीज। आप समझ रहे हो द शिफ्ट? तो जो साइकिल घूम रहा है उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है लार्ज कैप कंपनीज को, नॉट टू द मिड कैप और द स्मॉल कैप कंपनीज। दिस अगेन मैं आपको सिंपल समझाऊं, जो 2019 में हुआ था। नाउ जो अब ये लुक एट दिस स्लाइड, द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी, मैसिव शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मैसिव शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, मैसिव। उसके बाद बिजनेसेस, मैसिव बिजनेस शिफ्ट टू लार्ज कैप्स, बहुत जो बिजनेस था मिड कैप और स्मॉल कैप से वो गया लार्ज कैप को। Now, when mid-cap, and remember, 2019 में unemployment was a major thing, that under the Narendra Modi government, people have been unemployed. ठीक है? फिर वो पॉलिटिकल पार्टी तो तरह है कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। अब हम इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं यहाँ पे। हुआ क्या? When mid-cap and small-cap businesses they shut down, लेबर इंटेंसिव कौन होता है? मिड कैप स्मॉल कैप बिजनेस और लार्ज कैप बिजनेसेस? इट्स ऑलवेज द मिड कैप स्मॉल कैप बिजनेसेस। लार्ज बिजनेसेस, द बिग बिजनेसेस, दे विल हैव मशीनरी, दे विल हैव ऑटोमेशन, दे विल नॉट गिव एज मेनी जॉब्स जो जॉब्स देंगे आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दैट इज वाई अनएम्प्लॉयमेंट टुक अ मैसिव हिट। इसलिए आप देखोगे इन 2019, look at the PPT, in 2019 Nifty 50 was 12% up in December, like I showed you in the graph. The markets closed on an all-time high. ठीक है? Nifty 50 was 12% up. Nifty mid cap was -5%, and Nifty small cap was -12%. Nifty 50 plus 12%, Nifty small cap -12%. Are you seeing the difference? Are you seeing the difference? ये difference क्यों था? ये डिफरेंस इसलिए था बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस, बिकॉज व्हेन द व्हील वाज मूविंग, इंडिया इज सच अ बिग इकोनॉमी, यहाँ पे कुछ भी आप करोगे इट विल हेल्प सम पीपल, इट विल प्ले कंप्लीटली अगेंस्ट सम पीपल। ठीक है? इसलिए इंडिया में रूल्स पास करना तब मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इन एनी बिग इकोनॉमी ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो सेम सारा बिजनेस लार्ज कैप के पास चला गया। इसलिए अगर आप 2019 की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ऑफ एनी लार्ज कैप कंपनी, यू विल सी दैट देयर सेल्स हैव डबल्ड एंड क्वाड्रुपल्ड. And I don't think even the large cap companies had expected this. But it happened. That is why Nifty 50 only compromised the big companies. वो तो 12% ऊपर. Nifty small cap -12%. And इसलिए a lot of people, a lot of retail investors in our country had a massive loss. Massive loss in 2019. क्यों? क्योंकि retail investors इंडिया में तो पता नहीं क्यों, but सिर्फ penny stocks में ही invest करते हैं और कहीं invest करेंगे ही नहीं. ठीक है? Moving forward, I hope आपको सब समझ आ रहा है. I'm going to make it very even more simpler for you. अब the year of 2020 happened. Now let me shut down the PPT. You know, जब 2020 हुआ था, when people were asking me, Harsh, do you think COVID should we sell, should we buy? My students were getting in touch with me. मुझे लगा था नहीं यार, क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ past था ही नहीं. I didn't have any past to study this because the last closest thing I had to COVID-19 was SARS virus. SARS virus याद है? Now जब SARS वायरस हुआ था उसका भी आउटब्रेक था, बट ऑफ कोर्स नॉट टू द स्केल ऑफ दिस, एंड आई थॉट कि ठीक है हो जाएगा मार्केट्स, ठीक है, लेकिन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड दैट 2020 वुड बी दिस वे. कुड यू हैव इमेजिन्ड दैट द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन?
countries like Italy who have one of the best healthcare systems in the world. Do you remember the news when people were dying in Italy? Do you remember the time when migrants could not go to their home? जैसे मैं दिल्ली में, तो दिल्ली में इतनी माइग्रेंट स्ट्राइक हुई थी, माइग्रेंट्स अपने घर नहीं जा पा रहे थे. Do you remember the lockdown? Could you have ever imagined कि ऐसी सिचुएशन आती है? कोई जिंदगी में could have ever imagined that we in our life would ever see a year like 2020? Nobody could have. अब अगर आप देखोगे, I'm showing you PPT again. In 2020, what did I expect? मैंने एक वीडियो भी दी थी यूट्यूब पे, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2020. यू कैन वॉच दैट वीडियो आउट आफ्टर दिस वीडियो ऑफ कोर्स. उसमें मैंने क्लियरली बोला था जो सिचुएशन है, बिकॉज लार्ज कैप्स हैव डन सो वेल इन 2019, स्मॉल कैप्स हैव डन वेरी बैडली, तो दिस विल कम टू द मिडिल. ये एक मिडिल में आके मीट करेगा, और मिडिल में मीट करेगा. सो लार्ज कैप कंपनीज माइट कम लिटिल डाउन, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज विल डू वेरी वेल. दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ 2020 इन December 2019, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, विच आई जस्ट टोल्ड यू द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ. उसके बाद कोविड-19 सिचुएशन स्ट्रक, द एंटायर वर्ल्ड वाज इन लॉकडाउन. मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, एंड आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड दैट अ प्लेस लाइक कनॉट प्लेस, अगर फोटो होगी तो आई पुट अ फोटो हियर, अ कनॉट प्लेस वाज एम्प्टी. Connaught Place, one of the most crowded places in Delhi, empty, nobody on the streets. I think nobody could have imagined कि हम ऐसा कभी दिन देख सकते हैं. There was a healthcare crisis. Remember, उस समय ज़्यादा sanitizers and वो mask was such a deal. Every chemist के हर chemist के वो sanitizers खत्म. Fake वो छोटी मोटी सैनिटाइजर कंपनीज आ रही है विच वॉज स्टार्टेड सेलिंग फेक सैनिटाइजर्स. जो एयर मास्क थे, जो मास्क हम पहनते हैं फॉर कोविड, दे स्टार्टेड टू बीइंग सोल्ड इन ब्लैक. याद है? फिर द दिल्ली गवर्नमेंट हैड पुट अ थिंग दैट यू कैन नॉट चार्ज मोर फॉर अ मास्क और मोर फॉर सैनिटाइजर. ठीक है, वो जो दिल्ली का था. बट यू रिमेंबर इट? इट वॉज अ कंप्लीट फ्रीकिंग chaos. Economy and was in a crisis. There was a massive liquidity crisis. और सबसे ज़्यादा कंपनीज कौन सी अच्छी खेली? Pharma and FMCG. They outperformed. Why? Because FMCG में I remember they had sold the entire goods. Everyone started stocking the house. हम सब ने घर में आटा, दाल, चीनी भर लिया उठा के, ठीक है, बिस्किट्स वगैरह भर लिए, and these companies had a massive profit. Same with pharma industry. जब ये मार्केट रिसेशन में होते हैं ना, there are two industries which always do well. Is pharma and FMCG. Pharma and FMCG. But यहाँ पे तो रिसेशन था ही, तो they had to do well, and even more so because of COVID. They became the main bulls. और आज हम यहाँ बैठे हैं, पूरा 2020 निकल गया है. अब यू सी द Keynesian theory. अब हो क्या रहा है? Let me explain the Keynesian theory. Now, Keynesian theory, according to quite some economists, he is the father of economics. Now, the Keynesian theory. What is the Keynesian theory? Now, read this. Keynesian theory है, you pump in money into any economy and that economy will start working. You pump in money into any economy and that economy will start working. Now, PPT में भी हटा रहा हूँ. Okay, अब मुझ पे फोकस करो. Now, if I am a citizen of Delhi. Now, if suppose in Delhi, मैंने क्या करता हूँ, हर citizen of Delhi को I give them a sum of 50 lakhs. Hypothetical बता रहा हूँ. हर citizen of Delhi को मैं 50 लाख दे रहा हूँ. अब इससे होगा क्या? आउटकम क्या होगा? People, if when they have 50 lakhs plus, सबके पास लोग क्या बोलेंगे? They will spend more, right? They will buy new technology, they will buy new cars, they will buy new phones, whatever, right? तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, कंपनीज का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कंपनीज विल प्रोड्यूस मोर, व्हेन कंपनीज प्रोड्यूस मोर दे विल गिव आउट मोर जॉब्स एंड ऑल ऑफ आवर सैलरीज विल इंक्रीज एंड द एंटायर इकोनॉमिक साइकिल अच्छा होगा. आपको फिर से बताता हूँ, कीनीजियन थ्योरी. पैसा इकोनॉमी में डाला, ठीक है, इकोनॉमी में फिर सब खर्चा करेंगे, सबके साथ पैसा आ गया. अब उस खर्चे में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल स्पेंड मोर, कंपनीज विल मेक मोर प्रॉफिट, देन दे विल प्रोड्यूस मोर, दे विल गिव आउट मोर जॉब्स एंड ऑल ऑफ आवर सैलरीज विल इंक्रीज. सो द economic cycle will start working. This is the Keynesian theory. अब let's see the PPT again. अब आप यहाँ देखोगे, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस पैकेज, क्वांटिटेटिव ईजिंग, हेलीकॉप्टर मनी. बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग उसको बहुत डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, बट यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड. अगर आप उसका मतलब समझते हो दोस्त, इट्स ओके. In our day and age, we will have people who will hide behind big words. They'll throw big words, saying, उनको दिखाएंगे ऐसे कि मुझे बहुत नॉलेज आती है, but the fact is वो actually stuff है बहुत simple. तो अगर कोई आपके पास बहुत big words throw कर है ना, इसकी दो चीज़ें हैं. Either he's hiding up behind something कि यार मुझे आता है, he's trying to show off कि मुझे आता है. Second, he does not understand the concept itself. इसलिए आप देखोगे, if you see interviews of big investors, Warren Buffett, Charlie Munger, Manish Povrai, they'll speak in such simple language, आसान भाषा. Right? The best things in life are always simple and stock market सबसे ज़्यादा simple है. So again, Keynesian theory, तो जो money pumped in है in the economy, जो money economy pump in होता है, जो government करती है,
Either it can be by stimulus package, it can be called stimulus package, या आप उसको quantitative easing बोल सकते हो, या आप उसको helicopter money बोल सकते हो, कुछ भी बोलो मतलब एकदम सेम है. अब आप देखोगे हो क्या रहा है, स्टॉक मार्केट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही है. As you can see, the worldwide markets have been given a stimulus of $8 trillion. $8 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज मिल चुका है. एंड द इंडियन गवर्नमेंट itself, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, अगर आपको लॉकडाउन में ध्यान होगा, याद है आया था न्यूज में कि नरेंद्र मोदी जी इज गिविंग 20 लाख करोड़ टू द इकोनॉमी. 20 लाख करोड़, राइट? वो क्या है 20 लाख करोड़? दैट इज द स्टिमुलस. वो स्टिमुलस पुश है बिकॉज सिंस 2008 वी हैव बीन फॉलोइंग द कीनीजियन थ्योरी. क्यों? इकोनॉमिक्स क्या है? जुगाड़. इकोनॉमिक्स एक्चुअली अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, आई विल से जुगाड़. नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, बट हम जुगाड़ कर करके प्रॉब्लम्स या तो डिले कर देते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नोबडी कैन प्रोटेक्ट द पास्ट, सॉरी, एवरीवन कैन सी द पास्ट एंड एनालाइज द पास्ट. इसलिए यू विल सी वन इकोनॉमिस्ट विल से लुकिंग एट द पास्ट दिस इज गुड, अनदर इकोनॉमिस्ट विल से नो, लुकिंग एट द पास्ट दिस इज बैड. बिकॉज इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज अ गेम ऑफ ओपिनियंस. समथिंग जो आपको खराब लग रहा है, टू मी इट कैन सीम एज एडवांटेजेस पोजिशन. सो हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी वाली थ्योरी है यहाँ पे. तो ठीक है, इसलिए यू विल सी इकोनॉमिस्ट बहुत बार एक दूसरे से क्लैश करते हैं एंड बोथ ऑफ देम विल हैव लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग होंगी. बोलेंगे वो ये इकोनॉमिस्ट ए विल से मार्केट्स विल फॉल, इकोनॉमिस्ट बी विल से मार्केट्स विल डू वेल, एंड बोथ ऑफ देम विल हैव लॉजिकल रीजनिंग्स. But can anyone predict the future? You cannot. And I think it's wrong for us to expect from an economist कि अगर मैं economist हूँ तो आप मुझसे पूछोगे हर्ष मुझे बताओ, तो मैं आपको सही बताऊंगा. Because how can I predict the future? Nobody can predict the future, right? Nobody could have predicted the COVID-19 crisis. ठीक है, अब ये हुआ. अच्छा, मैं थोड़ा बैक में टॉपिक में वापस आता हूँ. अब गवर्नमेंट क्या करती है? दे पुश मनी इन द इकोनॉमी. व्हाई? व्हेन पीपल हैव मोर मनी दे विल स्पेंड मोर, कंपनीज विल प्रोड्यूस मोर, कंपनीज फिर ज़्यादा जॉब्स देंगी, सैलरी बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी. इसलिए अच्छा हो रहा है. दिस वॉज स्टार्टेड बाय बेन बनाकी. तो पिछले 20 सालों से, सिंस द पास्ट 2 decades, द एंटायर वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग वर्किंग ऑन द कीनीजियन थ्योरी, राइट? अब इफ यू सी 2008, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द रियल एस्टेट बस्ट जो अमेरिका में हुआ था, वहाँ पे दैट टाइम बेन बनाकी वॉज द फेयर ऑफ क्या बोल रहा हूँ, बेन बनाकी वॉज द चेयर ऑफ फेड. मैं बोल रहा था फेयर ऑफ चेड, ठीक है? द बेन बनाकी वॉज द चेयर ऑफ फेड. फेड इज फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, व्हाट आरबीआई इज टू अस, फेडरल बैंक उनकी, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका उनके लिए. एंड यस, तो ही डिड द सेम थिंग. उसने बॉन्ड्स इशू किए थे टू इंडिया एंड चाइना टू सॉल्व दैट क्राइसिस. अगेन उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट सिंपल समझो सिचुएशन सेम है. ठीक है, उसने पैसा लिया और इकोनॉमी में स्टिमुलस पुश दे दिया. ठीक, since then हम सब कर रहे हैं. If you see in the COVID era itself, the world economy has got a stimulus package of $8 trillion. The Narendra Modi government has given India stimulus package of 20 lakh crores. And rumors तो ये हैं कि ये पैकेज और बढ़ेगा. अब होता क्या है? Stimulus ना, ये liquidity है, is a drugs to stock market. Now let me minimize the screen. Liquidity is steroid to stock markets. किसी आप एथलीट को स्टीरॉइड्स होगे ना, वो भागता रहेगा, रुकेगा नहीं, ही विल आउट परफॉर्म एवरीवन. वो भागता रहेगा. क्यों? उसकी अपने बॉडी को स्टीरॉइड दे दिया, उसकी मसल्स अगर क्रैम्प अप करके सॉर कर गए, तभी भी ही विल कीप ऑन परफॉर्मिंग बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग दैट पेन. Same situation is with stock markets. If you give stock markets liquidity, stock markets will keep on going up irrespective what is happening, irrespective sentiment क्या है, irrespective of the fact कि economic indicators like GDP क्या बोलते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. stock market सिर्फ ऊपर जाएगा. क्यों? आप stock markets में liquidity push दे रहे हो, ठीक है? जैसे हमने स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी पुश दिया, देन ऑफ कोर्स वी हैव मोर मनी. हम बोलेंगे भाई शेयर्स खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा शेयर्स की वो सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट प्राइसेस मूव, आई स्ट्रांगली रिकमेंड मेरा यूट्यूब पे सेशन है अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. उसको देखो, मैंने बताया हाउ डू द शेयर प्राइसेस मूव. वॉच दैट सेशन, इट इज़ वेरी पावरफुल. अगर आपको पभी बेसिक्स पता है ना, बट प्लीज वॉच दैट सेशन, इट इज़ वेरी पावरफुल. ठीक है, तो ये होता है. अब रिमेंबर द हर्षद मेहता सिचुएशन, स्कैम 992, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सीन. हर्षद मेहता सिचुएशन, वेयर वर द मार्केट गोइंग अप बिकॉज हर्षद मेहता वॉज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द मार्केट्स. वो शेयर्स खरीद रहा था, वो पैसे भर रहा था स्टॉक मार्केट्स में, राइट? हर्षद मेहता के टाइम पे व्हाई डिड द मार्केट स्टार्ट करेक्टिंग? द मार्केट स्टार्टेड टू करेक्ट. व्हाई? बिकॉज हर्षद मेहता कुड नॉट अरेंज मोर मनी फ्रॉम द बैंक्स, जो वो स्कैम 92 में अच्छे समझा है. ही कुड नॉट गेट मोर मनी, उसका पैसा अटक गया था, इसलिए द मार्केट्स क्रैश्ड. अब जो हर्षद मेहता करा था इन 1992, आर गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ.
राइट डिफरेंस क्या है? वो इलीगल है, ये लीगल है. हर्षद मेहता वॉज डूइंग इट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर अ यूनिलैटरल बेनिफिट फॉर एवरीवन, फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है. अब वो हर्षद मेहता वाज गेटिंग मनी फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम द लीगल सोर्सेज एंड इट इज डूइंग द सेम थिंग. वो इकोनॉमी को लिक्विडिटी भर रहे हैं कि भाई पढ़ो लिक्विडिटी, भरो लिक्विडिटी. व्हेन आई से लिक्विडिटी आई मीन स्टिमुलस पैकेज, आई मीन क्वांटिटेटिव ईजिंग, आई मीन हेलीकॉप्टर मनी. प्लीज इसको ध्यान से समझो. ये समझ लिया ना, तुम्हारी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी. यू योरसेल्फ विल थैंक मी इन द कमेंट्स नीचे. ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. डन. कीनीजियन थ्योरी. अब शोइंग यू द पीपीटी अगेन. अब आप देखोगे देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी. क्यों? लोग मुझे बोलते हैं हर्ष द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नॉट शोइंग वेल, व्हाई इज द स्टॉक मार्केट डूइंग वेल? क्यों? बिकॉज लिक्विडिटी इज अ स्टीरॉयड टू स्टॉक मार्केट्स. आप स्टॉक मार्केट्स को लिक्विडिटी दोगे, मार्केट्स ऊपर ही जाता रहेगा इररिस्पेक्टिव द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव टू से. ठीक है. इसलिए यूल सी द निफ्टी प्राइस अर्निंग इज 37.84 राइट नाउ. अगर मैं इंडेक्स की प्राइस अर्निंग देखूंगा, इट इज 37.84. इट इज रिडिक्युलस. तभी भी मार्केट ऊपर भागी जा रहा है. लाइक सेम सिचुएशन वाज इन हर्षद मेहता सिचुएशन. अगेन मैं आपको हर्षद मेहता समझा रहा हूं फॉर एग्जांपल. आई एम नॉट सेइंग द गवर्नमेंट इज लाइक हर्षद मेहता. प्लीज इसको पॉलिटिकल मत ले जाना. मैं कितना बार बार ये बोली जा रहा हूं. प्लीज डोंट टेक दिस पॉलिटिकल. इसको सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स के एंगल से सोचो. राइट. प्लीज अपना पॉलिटिकल दिमाग घर पे छोड़ के आओ. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स सोचो, तभी आप लॉजिकली एनालाइज कर पाओगे. वरना आपके उस सेंटिमेंट्स अगेंस्ट बीजेपी और कांग्रेस यही सब निकलते रहेंगे यहाँ पे. ठीक है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. नाउ आप खुद देखोगे देयर इज नो फंडामेंटल रीजन, नो इकोनॉमिक रीजन, बट स्टिल द मार्केट्स आर डूइंग वेल. इफ यू सी द इंडियन इकोनॉमी इन Q1 of 2020, it is 24% down and Q1 of 2020 is compared to Q1 of 2019. ठीक है. उसके हिसाब से it is 24% down. ज्यादा कंफ्यूजिंग जरूरत नहीं है. अब बस अभी समझो. ठीक है. अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं. देन द Q2 it is -8%. और हम ये सब आप सबने न्यूज में सुना है दैट द इंडियन इकोनॉमी जीडीपी -24%. सबने न्यूज में सुना है. तभी भी मार्केट्स ऊपर जा रहा है. 2020 markets have touched an all-time high. उल्टा मुहूर्त ट्रेडिंग itself on the day of Diwali, markets touched another all-time high. जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया. I think nobody expected this. But still the markets are going up and up and up. ठीक. That is why there's a gap between stock markets and the economy. Why? Because stock markets have been getting a liquidity push. एक liquidity markets के लिए steroid होता है. दो steroid. अब एक एथलीट को steroid दो, वो भागता रहेगा. आप स्टॉक मार्केट्स को लिक्विडिटी दे दो, वो भागता रहेगा. स्टॉक मार्केट इट विल कीप. और मतलब वो बुल है. स्टॉक मार्केट बुल बन जाएगा जो ऊपर भागी जा रहा है और उसको कुछ वो ना यहाँ देखेगा ना वहाँ, वो सिर्फ ऊपर भागेगा. दिस इज व्हाट लिक्विडिटी डज टू स्टॉक मार्केट्स. ठीक है. नाउ अगर आप खुद देखोगे, we are in the longest bull run since 2009. As you can see in the presentation, we are in the longest bull run since 2009. 2009 के बाद we have not seen a bear run. दोस्त हमने bear run देखा ही नहीं है 2009 के बाद. Why? Because like I told you in 2008 जब से बेन बेर्नाकी ने he started the concept of Keynesian theory. मतलब started तो पहले से ही बहुत known था, but I think he was someone who actually used it and the world economy saw the benefits of it. तब से जो स्टॉक मार्केट से लिक्विडिटी मिलती जा रही है, तब से पैसे को लिक्विडिटी मार्केट्स में वो इकोनॉमी लिक्विडिटी जाती जा रही है. इसके बाद से मार्केट्स कभी क्रैश ही नहीं किया है. इफ आई शो यू द ग्राफ, राइट, लेट मी शो यू द ग्राफ. इसको थोड़ा जूम इन कर जाए. अब लो, आपको दिख रहा है ये 2008 का क्रैश था. ये 2008 का क्रैश था. अब लगा लो सिंस 2009 मार्केट्स ऑलवेज हैव बीन गोइंग अप. एंड यू वुड से हर्ष, बट इन 2016 द मार्केट्स केम डाउन. In 2020 the markets came down by 40%. I do not call this a bear run. एक bear run में टाइम करेक्शन भी होती है. In 2020 क्या हुआ था? Markets came down by 40% and within 1.5 months they again went up. This is not a bear run. इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे कभी जिंदगी में bear run देखा ही नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मार्केट सबसे bear run में गया ही नहीं है. एंड इफ यू सी द स्टॉक मार्केट साइकिल्स, आफ्टर एवरी 4 to 5 years मार्केट शुड कम इन अ bear run. बट टेल मी, सिंस 2009 हैव वी एवर सीन अ bear run? Have we ever seen a bear run? और if you want me to make a video on crash versus correction, मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रैश करेक्शन में, वो आपको यहाँ लिंक छोड़ दूंगा. एंड अगेन सी इट, आप देखना पावरफुल है. इफ यू वांट मी टू मेक अपडेटेड वीडियो ऑन दैट, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो. उल्टा अभी वीडियो देख रहे हो ना, अभी स्क्रॉल डाउन करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो द क्रैश वर्सेस उसकी वीडियो चाहिए. मैं आपको समझाऊंगा दैट दिस इज नॉट अ bear run. So hence we are in the longest bull run since 2009. आप सोच लो इकोनॉमी में क्या हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए आ रहे थे. अब बिकॉज लिक्विडिटी मार्केट्स अभी भी ऊपर ही हैं. देन
Till when will the stock markets go up? The stock markets, my friend, will go up till the liquidity dries up. जब तक गवर्नमेंट मार्केट को लिक्विडिटी देती रहेगी, and I'm not only talking about the Indian government, I'm talking about the worldwide government, जब तक इकोनॉमी को पुश मिलता रहेगा, जब तक गवर्नमेंट पुश देती रहेगी of the liquidity to the stock market and the economy, and I'm talking about the worldwide economy, markets will continue to go up. But yes, there will be a point wherein liquidity will dry up and the markets will correct. वो point कब आएगा? That we will have to see. Nobody can predict that point. ठीक है? क्यों? अब हर चीज का advantage भी होता है, disadvantage भी होता है. अब आप देखोगे, if you're doing quantitative easing, आप stimulus packages, liquidity दे रहे हो, इसका advantage क्या है? That economy चल रही है, बस का disadvantage भी होगा. इकोनॉमिक्स एक तराजू है, यू हैव टू बैलेंस इट, इसका डिसएडवांटेज भी होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग. एंड ट्रस्ट मी, ये आपने अपने घर में फेस किया है, ये मैंने अपने घर में भी फेस किया है, ये हम सब फेस कर रहे हैं. दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहला बैंक इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन. क्यों? बैंक इंटरेस्ट रेट्स विल कीप ऑन कमिंग डाउन. एज ऑफ नाउ द बैंक इंटरेस्ट रेट्स आर एज लो अप टू 4.5% पर एनम ऑन अ फिक्स्ड डिपॉजिट. 4.5%. इफ यू आस्क योर ग्रैंडफादर, बोलेंगे दादू एक टाइम आएगा 4.5%, वो हंसेंगे. आपको ध्यान होगा, आपको भी ध्यान होगा दैट एफडीज यूज्ड टू गिव अस इंटरेस्ट रेट ऑफ 8 to 9%. नाउ वी आर गेटिंग 4 to 5%. इसकी वजह से क्या होता है? टीना, दैट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. यू विल हैव टू पुट योर मनी इन स्टॉक मार्केट्स. राइट, दैट इज वाई देखोगे जो हमारी सेविंग्स है ऑफ द मिडिल क्लास लोग अपने पैसे कहाँ पार्क करते हैं? सिर्फ बैंक्स में. दैट इज वाई द सेविंग्स आर गेटिंग ड्राइड अप. दूसरा मैं आपको बताता हूं, इन्फ्लेशन. अब व्हेन देयर इज, एक मैंने वीडियो थी व्हाट इज इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन अगर आपको समझना है क्लियरली क्या है, प्लीज वॉच दिस वीडियो. अगर जो मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं, इफ यू वॉच इट ना, आप दोस्त 2021 के लिए यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल. ठीक है? अब इन्फ्लेशन होता है. अब जब इकोनॉमी में इतनी सारी डिमांड है, इतने सारे लोग डिमांड करेंगे, सबके पास पैसे आ गए, क्या सप्लाई उतनी जल्दी बढ़ सकती है? नहीं, सप्लाई को बढ़ने में टाइम लगता है. सो उस टाइम तक क्या होता है? इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो जाती हैं. You will see in Q2 of 2020 the food inflation was 7.3%. Food inflation. इसका मतलब क्या है? जैसे मेरे घर में my mom manages the kitchen and she buys the vegetables and everything. ठीक है? मेरी मॉम मुझे बोलती है, हर्ष, जो सब्जियां हम पहले 500 रुपए खरीदते थे ना, वो सब्जियां 1000 रुपए की आ रही हैं. कितना महंगा हो गया सब कुछ. The vegetables in your household also, the vegetables you must buy for 100, 200, 500 rupees, now they are costing you above 1000 rupees. Because food inflation in Q2 is 7.3%. ये ridiculous है. You will see it yourself that in the COVID-19 crisis, you are not going out, you are minimizing on all your outside expenses. तभी भी आपका खर्चा बढ़ रहा है, तभी भी your families are not able to save. Why? Because of inflation, because of bank interest is reducing down. और ये हम सब फील कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू करता रहेगा. ये ट्रेंड कंटिन्यू करता रहेगा. इफ यू थिंकिंग दैट बैंक इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा. बिकॉज दोस्त, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स डू कम डाउन. इफ यू सी इन इकोनॉमीज लाइक जापान एंड जर्मनी, वहां पे वी हैव नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स. तो आप समझो इसको, इकोनॉमिकली समझो, पॉलिटिकली मत ले जाना. मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉलिटिकली ले जाओगे दिमाग वहीं बंद हो जाएगा. लाइक एवरी, अनफॉर्चुनेटली एवरी एवरेज इंडियन, कि अच्छा ये तो मोदी जी की गलती है या राहुल गांधी जी की गलती है. प्लीज इकोनॉमिकली सोचो. कूल. अब इसलिए द मिडिल क्लास पीपल आर गेटिंग स्लॉटर्ड. इसलिए अगर इफ यू हैव नॉट बीन इन स्टॉक मार्केट्स, नो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं, आप अभी तक स्टॉक मार्केट्स में नहीं हो, तो याद रखना, इफ यू इन द मिडिल क्लास ब्रैकेट, यू विल गेट स्लॉटर्ड. बहुत बुरी तरह स्लॉटर्ड हो गए. Because this is the situation of the middle class in our country, because of increasing bank interest rates because of decreasing bank interest rates and increasing inflation, middle class are being slaughtered. And this is happening in every economy of the world. अब what to expect in 2021? अब हमने देखा 2019 में क्या हुआ था. The structural changes हुए थे, right? उस समय the sentiment was bad, but still the markets touched an all-time high. इस साल the COVID situation happened. We saw that the world governments are giving a liquidity push to the markets. अभी भी markets all time high में बैठे हुए हैं. अब what to expect in 2021? Again, I cannot tell you the future. I cannot say कि ऐसा ही होगा, but this is my personal analysis. Cool. सबसे पहला इकोनॉमी की बात करते हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस ना, लो इंटरेस्ट रेट्स होते जाएंगे, देयर विल बी जॉबलेसनेस एंड देयर विल बी ग्रोथ.
एंड ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी देयर एक जॉबलेस ग्रोथ होगी जहां इकोनॉमी बढ़ रही है बट पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई एंड डोंट वरी इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टॉकिंग अबाउट द जॉब सिचुएशन जॉब मार्केट इन 2021 एंड आई एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस ऑल्सो. तो ये तो चलता रहेगा. नाउ यूल सी देयर इन 2021 देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन. आप देखोगे जो लोग टेक्नोलॉजी से हैप्पी नहीं है, जो लोग डिजिटलाइजेशन से कंफर्टेबल नहीं है, उन दे आर आल्सो फोर्स्ड टू डू दिस. लार्ज कैप्स विल ग्रो इवन फास्टर देन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स. क्यों? Because they have the ability to incorporate technology and that too on a much faster level. And you need to watch out कि क्या economy में और stimulus आता है. Now Joe Biden was elected as the president of America. All of you know that. One of his main agendas, at least in his agenda sheet, now will he do it or not, it's a separate question, was that he wants to introduce more stimulus to the economy. अब अगर Joe Biden stimulus economy में और डाल रहे हैं तो I'm sure everyone will follow America. So yes, markets are expected to go even higher. Because it's, remember, stimulus is a steroid to stock markets. Now, what to expect in stock markets? Markets will be overpriced till the point liquidity dries up. Where लोग मुझसे बोलते हैं हर्ष when will the markets crash? I cannot tell you. Markets will continue to move up till the point liquidity dries up. ठीक है. Then trading ये बहुत अच्छा होगा ये साल ट्रेडिंग के लिए. Why? Because trading में you need volatility. Trading में you don't care the markets overpriced or underpriced. Trading में हमें क्या चाहिए traders? We need volatility. खत्म. और इन्वेस्टिंग के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा. क्यों? बिकॉज जब मार्केट्स करेक्ट करेंगे या जब नीचे क्रैश करेंगे देन माय फ्रेंड वी विल स्टार्ट चूजिंग आर मल्टी बैगर्स. एंड डोंट वरी, मैं मल्टी बैगर्स में भी वीडियो बनाऊंगा. राइट. सो द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर वैक्सीन. अभी आप देख रहे हो वैक्सीन की न्यूज़ ऑलरेडी आ गई है. तो जो जैसी कोविड की नई स्ट्रेन की न्यूज़ आई कि द म्यूटेटेड कोविड स्ट्रेन की न्यूज़ आई थी, द मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग, जो हमने अभी रिसेंटली देखा था. राइट. बट समथिंग टू वॉच आउट फॉर वैक्सीन. यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू IPOs कमिंग इन दिस ईयर एंड सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर 2021. मैं जहाँ जाता हूँ स्पेशल ध्यान दो इज IT, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स. ये 4 सेक्टर्स हैं which are expected to do really well this year. This was for 2021 and please remember, if you're not putting your money in stock markets, please remember India is one of the fastest growing economies in the world with growing GDP and per capita income and discretionary income. स्टॉक मार्केट्स ना एक अपॉर्चुनिटी है टिल 2021. डोंट गिव yourself नो स्टॉक मार्केट्स वो बॉट में यहाँ नहीं जाऊंगा. वाई? बिकॉज देयर आर 30,000 रीजंस फॉर यू नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स एवरी सिंगल डे. 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं. These are reasons not to invest, but मार्केट से ऊपर ही जाते रहेंगे. So please start investing. That is a mandate. ठीक है. And this is what you will be expecting in 2021 according to me, and hence you will always be one step ahead. Now let me close the PPT. Now guys, सिंपल भाषा में देखो हम कितना कवर कर लिया. So अगर समझ नहीं आया दोबारा देखो, but please understand this. Watch this again. Put headphones and please share it on your LinkedIn, share it on your Facebook so that if you like the information, you should send it to other people also. और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ that Harsh, did I like it? If you disagree with my analysis, बोलो Harsh, you are completely wrong. मुझे बताओ. But again, politically मत जाना, सिर्फ logically ही बताना. I am here for a debate. I am here for a logical discussion. You and me, buddy, let's do it. Let's logically analyze that markets economy कहाँ जाएगी. And I have explained you from where our economy has been coming. Yes, so it took a lot of effort from me. So if you liked it, I would really appreciate for you to give me a like button because to make such content and give such deep analysis in easy words, ये आसान नहीं होता है. ठीक है. तो आप I would really appreciate it if you hit the like button, if you subscribe, and I would appreciate it even more if you share this video. And if you want more interesting content like this, if you want more deep analysis like this, right, you can join a stock market course जहाँ पे ये अपने students के लिए मैं हमेशा provide करता हूँ. And this is all free for them and we do it on a personal basis with them. So you can feel free to join our program, feel free to join our course, or you can join our value mails जहाँ पे आपको value mails हम देंगे which is free of cost. ठीक है. That was it for today. This was the economic analysis of 2021. I hope आपको मजा आया. और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. बहुत मेहनत लगी है. I would really appreciate if you like, share and subscribe to this channel. This is Harsh Goela from Goela School of Finance, financially empowering you.